سب سے پہلے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلطان العارفین کا لفظ بولا گیا طریقت میں. اللہ اکبر. وہ سلطان العارفین، وہ امام اولیاء جن کی پہنچ اور روحانی اپروچ کا عالم یہ ہے. یحییٰ بن معین نے خط لکھا حضرت بایزید بسطامی کو، اور جو لکھا ان کی اپنی کیفیت باطن تھی، لیکن بصیغہ غیب لکھا. بزرگوں کا ماضی میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی بات بھی بیان کرنا ہوتی تو بصیغہ غیب بیان کرتے تاکہ جو ہے وہ لوگوں سے معاملہ مخفی رہے. تو حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید سے لکھا، حضرت اس شخص کی کیا کیفیت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ لیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی. یہ حضرت یحییٰ بن معین کی حالت قلبی تھی، اپنی واردات تھی، لیکن بصیغہ غیب پوچھا. اس شخص کی کیا حالت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی. تو حضرت بایزید نے اس کا جواب لکھا، اور جو لکھا وہ کیفیت ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے بھی بصیغہ غیب لکھا. کہا، میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ لے لیا اور ابھی تک مستی نہیں اتر رہی، نشہ ہی نہیں اتر رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے. یہ ہیں بایزید بسطامی. اللہ اکبر. طیفور سے مکہ المکرمہ تک جب حج کا سفر کیا تو 12 سال لگے. حالانکہ اتنا لمبا فاصلہ ہی نہیں تھا. 12 سال کیسے لگے؟ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. 12 سال میں طیفور سے مکہ المکرمہ جب پہنچتے ہیں اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو حضرت بایزید بسطامی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. تو کسی نے کہا، حضرت اتنے شوق فراواں کے ساتھ آئے ہیں اور کعبۃ اللہ سامنے ہے، اب آپ نے نگاہیں جھکا لی؟ تو حضرت بایزید فرمانے لگے کہ اتنی دور سے پتھر دیکھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ پتھر بستان میں تھوڑے تھے. تو پھر دوسری نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا. لیکن بایزید بسطامی پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے، پھر نظریں جھکا لی. پوچھا، حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا، جب وہ نظر آتا ہے تو ساتھ میں پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ تو جب تیسری مرتبہ نظر اٹھائی تو جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے. یہ ہیں بایزید بسطامی، یہ ہے ان کی پہنچ، یہ ہے ان کی اپروچ، یہ ہے ان کی روحانی استعداد. فرماتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ جو ہے وہ غوطہ لگایا معرفت کے سمندر تھے، اور میرا شوق یہ تھا کہ حضور کی شانوں کو ملاحظہ کروں. پھر کیا ہوا؟ فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور. کہتے جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت ابھی شروع ہو رہے تھے، میرے نقطہ اختتام اور ان کے نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کے پردے حائل تھے، اور اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلاب کا مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ ترازو گاڑ کے اس کو تولنے لگا جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگا جس کو ناپا نہیں جا سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہوگا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو ان کی پہنچ اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا کون اندازہ کرے؟ ہمارے درس نظامی میں داخلی نصاب کتاب ہے، شرح قائد نصفیہ. تمام مکاتب فکر کے مدارس میں اہل تشیع کے علاوہ سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے. اس میں حضرت ابوالحسن رفاعی کا ایک قول پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ
सअदतु फिल फौकानियात, यहां तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया। और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इंसान की रूह परवाज कर सकती है। हम ख्वाब में कहां से कहां जा पहुंचते हैं, ये हमारी रूह है। और हमारी रूह रूहानी तौर पे भी परवाज कर सकती है। अगर मेरी और आपकी रूह जंग आलूद हो तो फिर पाक लोगों की रूहों से हम अपनी रूह को क्यास ना करें। जिनकी रूहें मुसफ़्फ़ा हैं, जिनके आगे हिजाब और पर्दे नहीं हैं, तो वो परवाज करती हैं। तो वो फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता सअदतु फिल फौकानियात, यहाँ तक कि बहुत ऊंचा चला गया। एक अर्श आया उसे अबूर किया, दूसरा अर्श आया उसे अबूर किया, 7 लाख अर्श अबूर कर गया। अर्श एक नहीं है, अर्श बहुत सारे हैं। आलमे इमका और आलमे वजूब के दरमियान अर्श आलमे बरज़ख है। जब अल्लाह ताला इस दुनिया पे कोई तजल्ला डालना चाहता है तो पहले अर्श पे डालता है, वहां से तजल्लियात छिन के दुनिया पे आती हैं। अगर डायरेक्ट आ जाए तो कोई ताब ही न ला सके। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अर्श एक नहीं, अर्श बहुत सारे हैं। कहते हैं मैं 7 लाख अर्श अबूर कर गया। आवाज आई अबुल हसन रिफाई किधर आ रहे हो? तो मैंने अर्श की मालिक मेराज की शब, जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम लगे थे, मैं उस अर्श को देखने के शौक में कशां कशां यहां तक पहुंचा हूं। न सफर बशर्ते माल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूं कहां कहां। मेरे दिल की खलवतें कई बार सज के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। कहा तो मैं इस शौक में यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं उस अर्श को देखना चाहता हूं और मेरी परवाज की गर्ज़ व गायत ये है। तो आवाज आई इरजे ला वसूल लका, अबुल हसन पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी परवाज करो, जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम लगे थे वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल ओलाबे कमाल ही। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहरिया हैं और लैल से मुराद हुजूर के कमालाते बातनिया हैं। एक कौल ये पेश किया कि दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने अपने महबूब को शाने दी है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतें हैं, ये हुजूर की रिफतों का आलम है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहरिया और लैल से मुराद हुजूर के कमालाते बातनिया है। फिर कहा दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर इल्म है, जिससे कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं, चिट्टे दिन की तरह रोशन, हर शय महबूब की निगाहों में है। अल्लाह के महबूब की नजरों में कोई चीज पोशीदा नहीं। वइन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। अल्लाह ने वो समाअतें दी, वो बसारतें दी। ये गलती होती है कि अपने हवास को नबी के हवास पे क्यास किया जाए, या नबी के हवास पे अपने हवास को क्यास किया जाए। कुरान पढ़िए, सूरा नमल उठाइए। हजरत सुलेमान अपने लाओ लश्कर के साथ जब आगे बढ़े तो वादी नमल आ पहुंचे। तो वादी नमल में चींटी ने जब लश्कर सुलेमान आते देखा तो उसने अपनी हमजोलियों से, चींटियों से कहा कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। अल्लाह अकबर। और ये बात हजरत सुलेमान ने सुनी। कितनी दूर से सुनी? 3 मील या 7 मील दूर। 3 फरासख अगर हैं तो 9 मील बनते हैं। तो 9 मील से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 फरासख से चींटी की उस बात को सुना और उसके लहजे को समझे। अल्लाह अकबर। तो नबी की शान ये होती है कि जो चींटी की बोली है उसको सुन लेता है 9 मील के फासले पर। आप में से कोई है कि जिसके कान के पर्दे पर भी चींटी को रख दिया जाए तो उसकी कहानी समझ ले कि ये क्या बोल रही है? अल्लाह अकबर। ये त्यूरियात के माहिरीन कहते हैं चींटी के मुंह में जुबान नहीं होती। चींटी बोलती फिर कैसे, अब बात कैसे करती है? इसके मुंह में जुबान भी नहीं होती। तो इसके मुंह के करीब बारीक से 2 रेशे होते हैं, महीन से 2 बाल होते हैं। जब इसने अपनी हमजोली को कोई मैसेज देना होता है उन बालों को करीब करके रगड़ती है।
उस रगड़ से जो आवाज निकलती है उससे अपनी हमजोली को कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है। अल्लाह के नबी की शान यह है, चींटी के बालों के रगड़ने से जो आवाज पैदा होती है 9 मील दूर से उस आवाज को सुनता भी है, उससे जो मफहूम निकलता है उसको समझता भी है। और ये शान उस नबी की है जो मुक्तदी बन के मस्जिद अक्सा में तेरे नबी के पीछे खड़ा है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो अपने हवास पे नबी के हवास को क्यास करना, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होती है। तो कहा इन्नी अरा माला तरोना वास्मा माला तस्मो। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि नबी तो नबी हुआ। हदीस में आता है कि जब मियाँ बीवी घर में उलझ पड़ते हैं, साले मर्द हो और उसकी बीवी उससे उलझती है, तो उस मर्द साले की होने वाली बीवी जन्नत में हूर इस मंजर को देखती है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी की आदत ये है, हदीस की रिवायत के बाद उसका दर्जा भी बयान करते हैं। तो इस हदीस को बयान करने के बाद कहा हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है और सही भी है। और हदीस क्या है, जब मियाँ बीवी घर में उलझते हैं और शौहर को बीवी कोसने देती है कि जब से तेरे घर में आई हूं मेरा तो करार लुट गया है, माँ बाप घर कितनी आसूदा जिंदगी थी, तो वो बेचारा शौहर तंग होता है और बीवी उसको ताने देना शुरू कर देती है। तो सही हदीस में आता है कि जन्नत में उस मर्द साले की बनने वाली बीवी हूर इस मंजर को देखती भी है, सुनती भी है और जवाब भी देती है। और क्या कहती है, कातला किल्ला, तेरी खराबी हो, तू इसे क्यों सताती है, ये तो चंद दिन का परौना है तेरे पास, ये तो मेरा शौहर है। ये कौन कह रही है, हूर कह रही है। और हूर कहां से कह रही है, जन्नत से कह रही है। और जन्नत कहां है, 7 आसमानों से ऊपर है। ताजी घोड़ा सरपट दौड़े, ताजी घोड़ा सरपट दौड़े और 500 साल तक दौड़ता रहे तो पहले आसमान तक पहुंचे। फिर इतनी मोटाई, फिर 2 आसमानों के दरमियान इतना फासला, और फिर आसमान, फिर फासला, 7 आसमानों के बाद फिर कहीं जन्नत, और जन्नत में हूर, और वो भी खेमे के अंदर, और वहां से देखती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, यार हूर कौन है? तो कहा हूर मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है। हूर मेरे नबी के गुलाम की बनने वाली बीवी है और उसकी नजर का आलम यह है कि वो जन्नत से देखती है। यारो मदीना तो दूर ही नहीं है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है। हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। इकबाल बोले है फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू भी निंदाए माफिस सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती। हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिका था। एक सहाबी हैं वाबिसा बिन माबद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो पीछे आके बैठ गए। आदाब मजलिस भी यही है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। सदर मजलिस को इख्तियार है कि वो किसी को आगे बुलाना चाहे तो बुला ले। जहां हुजूर होंगे वहां सदर मजलिस कौन होगा। अब वो आए हजरत वापसा और पीछे बैठ गए। हुजूर ने कहा उदनो या वापसा, वापसा नेड़े आ जाओ। वो उठे और करीब आ गए। फिर फरमा उदनो या वापसा, वापसा और नेड़े आ जाओ। वापसा उठे और करीब हो गए। फिर फरमाया वापसा और नेड़े आ जाओ। अब हजरत वाबिसा की सुनिए, फरमाते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना नेड़े हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दे तो हद हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है? यही सवाल था? जी हुजूर यही सवाल था। कहा इसका जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है? अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरब अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां, और उंगलियां जोड़ के ऐसे हुजूर ने दिल वाली जगह पे मारी। और फदरब अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, दिल वाली जगह पे मार के फरमाया ये अंदर मुफ्ती बैठा इसे ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है, यही बता देगा बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबाने लगते हो, अंदर मुफ्ती फतवा दे रहा होता है गलत कर रहे हो।
जब रिश्वत ले रहे होते हो मेज के ऊपर से लो या मेज के नीचे से, अंदर का मुफ्ती बोल रहा होता है ये गलत कर रहे हो। जब गुजरते हुए नजर भटकती है और ख्याल बहकता है तो अंदर जमीर आवाजें देता है, तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी माँ बैठी है, तेरी नजर क्यों आवारा हो रही है, अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, अंदर बोल रहा होता है। तो मेरे हुजूर ने 3 उंगलियां जोड़ के दिल पर मारते हुए फरमाया, इस्तफ्ते मिन कल्बिक, ये तेरा मुफ्ती ही बता देगा, ये अंदर का मुफ्ती बता देगा कि खैर क्या है, शर क्या है। इकबाल ने कहा था ना कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। तो ये दिल बताएगा, ये मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, तो इससे पूछिए नेकी क्या है, इससे पूछिए बुराई क्या है। तो हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। और एक हदीस सुनाऊं और अपने मजमून को आगे ले जाऊं, और ये सिहा की रिवायत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तक तो नहीं आया, उसके फितने नमूदार हुए, लेकिन वो आना चाह रहा है। तो कहा कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, 1450 साल बीत के इस बात को बताए हुए, फरमाया जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। सुनिए आगे, फरमाया इन्नी लारिफो अस्माअहुम, कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में जो मेरे गुलाम निकलेंगे, इन्नी लारिफो अस्माअहुम, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वास्मा आबाहिम, उनके बाप दादे के नामों को भी जानता हूं। कहानियां खत्म नहीं हुई, व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किस कबीले का फर्द, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। यार आलमों का लफ्ज नहीं है, इन्नी लारिफो, मैं पहचानता हूं उन्हें जो कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में आएंगे। ये मेरे महबूब की निगाह है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर की निगाह दूरबीन है, जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों को छुपा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा लैल, जिस तरह रात छुपा लेती है, तो लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व है, दामने रहमत है, दामने करम है, जो गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट लेगा। खुद फरमा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े मुजरमों की शफात करूंगा। तो क्या मंजर होगा हशर का, जब मेरे आका शफात करके गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट रहे होंगे। वो किसी ने किसी महफिल नात में पढ़ दिया, जिस तरह कि आजकल हमारी शायरी चलती है कि वो अपना मुकदमा नहीं हार सकता जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि वकील ना कहो, वकील जो है निगहबान के माना में तो ठीक है, लेकिन आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वकील के माना, एडवोकेट के माना में वकील आ रहा है। तो हुजूर मुकदमे में हमारे वकील नहीं होंगे, बल्कि हमारे शफी होंगे। वकील और शफी में फर्क होता है, जो सफारशी होता है उसमें और वकील में फर्क होता है। आप जानते हैं, देहातों के रहने वाले, वकील की लड़ाई ये होती है और वकील की बहस ये होती है, उसके दलाल ये होते हैं कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ दिया जाए। वो सबूत ये देता है कि इस पे इल्जाम है और गलत इल्जाम है, मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए, ये वकील कहता है। और शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए, मेरी सिफारिश मानी जाए। हुजूर कयामत के दिन वकालत नहीं फरमाएंगे, शफात फरमाएंगे। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो वो मंजर होगा, ये हुजूर का दामने शफात है, बड़े बड़े गुनाहगारों को हुजूर अपनी आगोश में समेट लेंगे। तो दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ना है।
کہا کہ دہا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے، جو چاشت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اور لیل سے مراد محبوب کی زلف عنبری ہے۔ تو گویا ترتیب کلام یہ ہے کہ محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ قسم ہے تیرے رخ تاباں کی، اور قسم ہے تیری زلف دوتا کی، تیرے چہرہ نور کی بھی قسم، تیری زلف عنبری کی بھی قسم۔ محبوب قسم ہے تیرے چہرہ حسین کی، وہ چہرہ کہ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے چہرے کا؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ اللہ اکبر، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پورے وطن میں جگہ جگہ جا کے کہا تھا میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ سایہ تو بڑی دور کی بات ہے، مثل تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اس کا محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، مثل او در عالم مقام متصور نیز، ان کی مثل بزم عالم کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، تو اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا تھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کوئی نہیں۔ وہ سایہ چے معنی دارت، تو سائے کا کیا پھر معنی باقی رہتا ہے؟ سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صاحبو، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسین چہرہ دیا، وہ جمال دیا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے